Assalamu alaikum, Sitara. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me, Umair. Thank you so much. सितारा वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन I'm pretty much sure LinkedIn की ऑडियंस को अच्छा खासों को पता है कि what सितारा do. But just for the audience, can you just like introduce yourself a bit? Yeah, of course. First of all, thank you. No, इतना नहीं है कि a lot of people know me. You're just being very nice and humble. But my name is Dr. Satara, and I'm a pharmacist by my education. But I am currently working in CSR corporate communications. I'm heading a welfare organization, which is Al Furqan Welfare Organization. It's working exclusively for education, and I'm heading the fundraising committee there. Other than that, I also run a small social media marketing and management firm. I'm also a professional host and a content creator as well. So yes, Perfect. small size introduction. So it will be a good thing कि हम दोनों host ही बैठे हैं एक तरीके से so we can have a discussion on it. You know the agenda of this session is to discuss about a lot of important things that can be very much impactful in the professional career. But it all started with the growth. So Yeah. I would like to know what's growth for you and not only personal growth or professional growth overall. कि what do you think कि ग्रोथ क्या होती है अब लाइक अगर मैं सितारा से पूछूं सितारा का परसेप्शन क्या है ग्रोथ को लेके। वेल सबका परसेप्शन बहुत अलग होता है. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं सो इट्स एन इंडिकेशन दैट यू हैव ग्रोन अ लॉट. अगर आपके लिंक्डइन पर जो है वो बहुत मैसिव कनेक्शंस हैं, फॉलोइंग है, तो वो आपकी ग्रोथ है. बट व्हाट आई बिलीव इज कि जो आपकी एक पर्सनालिटी है या जो एक आपकी मतलब क्या कहना चाहिए, व्हाट the other person thinks about me, what the other person says about me in my absence, if that is positive, then I think that is growth for me. ठीक है, I was able to create an impact जब मैं किसी से बात करती हूँ, if I'm having a conversation with anybody, if I'm in a session, if I am hosting somewhere, if I leave them even with 2 cents of information and they remember me through it and they are able to create a positive change through that conversation or through that tip of mine, then I believe that is growth for me basically. इसके अलावा प्रोफेशनली और पर्सनली तो ग्रोथ आपकी यही है कि द मोर यू एक्सपैंड योर होराइजंस द मोर यू ग्रो. दैट्स परफेक्ट। सिंपली व्हाट आई बिलीव ग्रोथ इज. परफेक्ट। अब इससे इससे एक और चीज ड्राइव होती है कि एज वी आर ऑल वर्किंग समवेयर एज अ क्रिएटिवली लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन if I say LinkedIn is something that is more important towards it. And a lot of people nowadays like coming to LinkedIn and they're now posting about their self, about their experience. So what do you think how LinkedIn is important for I'll say a person who are into social media, who are into uploading stuff, who are doing podcast, as you also mentioned that you are doing podcast by yourself as well. तो बहुत सारी चीजों में ये बहुत जरूरी होता है कि आपको अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल बेहतर करनी होती है लाइक योर पर्सनल ब्रांडिंग the people you are connecting with or everything aligns with your growth and your personal branding. So what do you think LinkedIn कितना important है एक जर्नल करियर में या एक प्रोफेशनल करियर में to be on some point? You know, it's one of the pain points that I have because I meet young individuals every day. ठीक है, आई डू अ लॉट ऑफ यूथ ट्रेनिंग्स एज वेल. सो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि लिंक्डइन के बारे में ना हमें ऐसा लगता है कि बहुत लोग जानते हैं या बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, बट सैडली देर आर सो मैनी स्टिल आउट देयर हु हैव नो आइडिया. इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आज से 2 से 3 साल पहले की बात करूं तो इवन आई वॉज नॉट दैट एक्टिव ऑन लिंक्डइन. ठीक है, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस का उतना अंदाजा नहीं था जितना व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर, व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन एंड द अपॉर्चुनिटीज आई गॉट थ्रू लिंक्डइन. मतलब LinkedIn optimization is such an important thing. It's like कि अगर आप उस पे काम नहीं कर रहे, आपने एक ब्रांड बना दी और अब आप उस ब्रांड को मार्केट नहीं कर रहे, आप उस ब्रांड के बारे में कुछ अपलोड नहीं कर रहे, नो बडी नोज अबाउट इट एंड यूर जस्ट सेइंग कि हाँ एक ब्रांड मैंने बनाया, एक मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू नो अबाउट इट? आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने इतने मेहनत से पढ़ाई करी है, नाउ यूर एक्सपेक्टिंग एंड यू आर सिटिंग के मैं सीवीज में ईमेल्स कर रहा हूँ और सम डे यू नो मेरे मिराक्युलसली अ जॉब विल लैंड ऑन माय लैप.
when there is an entire platform dedicated for you, to help you out in achieving your goal. So I think young individuals and young people who are graduating right now, I emphasize this so much on them that please work on your LinkedIn because it is such a huge hub. अगर आप देखें बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, हमजा भट्टी, तलहा भट्टी, देयर अदर कंटेंट क्रिएटर्स, मुजम्मिल हसन, जो बड़े बड़े नाम है, दे आर ऑल ऑन लिंक्डइन. एंड उनका सबसे बड़ा जो एम्फेसिस होता है वो इसी चीज के ऊपर होता है कि लिंक्डइन इज द हब टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द ब्रांड्स. So Perfect. I believe कि it is the most important thing that you can do in your career growth and your professional journey, that to optimize your LinkedIn as much as you can. परफेक्ट। अभी हम बात कर रहे थे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की, कि अब लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बड़ा मिथ फैक्टर कह लें, या लोगों को ये तो पता है कि यार ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर Hmm. नॉट अवेयर ऑफ केयर करनी कैसे। लोगों को लगता है कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि बस यार एक मरतबा आपने अपनी लिंक्डइन पूरी कर दी एंड यू हैव डन योर पार्ट, और उसके बाद शायद लिंक्डइन खुद से ग्रो करेगी। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और Hmm. डीप डाउन जाऊं, क्योंकि जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं तो हर हर प्लेटफॉर्म का एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अब उस एल्गोरिदम को कभी कभी शुरू में आपको उस एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, एंड देन इट कम्स टू अ पॉइंट जहाँ पे वो एल्गोरिदम आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है, Hmm. ठीक है। सो बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक यार, इंपॉर्टेंस तो है बट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? इट शुड बी योर प्रोफाइल, इट शुड बी द एंगेजमेंट, इट शुड बी लाइक योर पोस्टिंग, व्हाट आर द की फीचर्स टॉप ऑफ योर माइंड, अगर मैं पूछूं तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है बेसिकली? ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली आप अपने प्रोफेशनल रेपुटेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर राइट अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड यू. ठीक है. एंड फनीएस्ट तो नहीं बोलूंगी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर अबाउट लिंक्डइन इज कि लिंक्डइन का एल्गोरिदम इज सो इजी टू ब्रेक कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स. Because easier in a sense कि if you're posting something relatable to the HR fraternity, to the marketing fraternity, you get that limelight so quickly. और अगर आपकी कोई एक पोस्ट के ऊपर भी किसी बंदे ने कमेंट कर दिया है तो वो कमेंट, मतलब it literally will go towards 100 other people who will also see that content, and they will quickly connect with you. On डेली बेसिस मेरे पास मेरे पेज पे इतने कनेक्शंस की पोस्ट आ रहे होते हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड नहीं होती, बट बिकॉज आई लाइक देयर कंटेंट सो मच, बिकॉज सम ऑफ माय फ्रेंड लाइक्ड और कमेंटेड ऑन दैट पोस्ट, तो इट शोड अप ऑन माय वॉल एंड आई हैड टू गो एंड कनेक्ट विद दैट पर्सन. सो लिंक्डइन का एल्गोरिदम इज द easiest टू ब्रेक. सो इसमें विजिबिलिटी क्रिएट होती है आपके प्रोफाइल के लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से. When you get visible, you get networking opportunities, you connect with different people, you get to know what the other person is doing, corporate world में हो क्या रहा है, कहीं पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, रिक्रूटर्स से कनेक्शन में आपको हेल्प मिलती है. बेसिकली योर पर्सनल ब्रांड डेवलप्स अ लॉट इन दिस वे. अब लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरह से कर सकते हैं? यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल स्टैंड्स आउट. आई कैन नॉट टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे द कवर इज what is going to work for you. Your profile picture, your headline, your cover, your entire wall, कि आप उस पर क्या शेयर कर रहे हैं, कैसी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन किस तरह से दिखता है. सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट आर क्विकली राइट नाउ कमिंग इन माई माइंड. अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर not to have any professional pictures on their profiles, या उनके cover photos नहीं होते, या उनकी जो tagline होती है या जो headline जिसको हम कहते हैं वो completely out of context होती है. I'm a student, entrepreneur, looking for a job, such immature headlines that वो अगर कोई recruiter आपको connect भी करना चाहेगा ना तो वो वो कतराएगा कि नहीं, doesn't seem professional. So these are some of the things that I believe whenever we're talking about LinkedIn optimization. So we should always be careful about these things. Okay, you have to choose a perfect profile picture. You have to compel craft a compelling headline. आपकी समरी इंगेजिंग होनी चाहिए कि आप हैं कौन एग्जैक्टली कि अगर मैं एक रैंडम रिक्रूटर हूँ, टैलेंट एक्विजिशन की हूँ, मैंने उमेर का प्रोफाइल खोल लिया. नाउ आई वांट टू नो हु उमेर इज, आई वांट टू गेट एन आइडिया. So I will judge the book by its cover before I actually get into the pages. You get my point? So that is how link optimization works. बिल्कुल। इट्स मोर लाइकली व्हाट यू शेयर इज मोस्ट लाइकली
टू बी जज, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, मैं इससे बिल्कुल लाइन अप इसलिए हूँ क्योंकि लिंक्डइन इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी हम रियल लाइफ के बारे में बता रहे हो, तो ना हम्म, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी एंड यू कैन स्क्रॉल इट अप। इट्स मोर लाइक व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल यू नो अबाउट हिम, अबाउट देयर प्रोफेशनल कैरियर, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट कम्स टू अनदर पॉइंट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। हम्म, अभी आपने बताया कि यार कवर होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, बट अपेरेंटली होता ये है कि बहुत सारे लोग डाल तो देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग इट। या There are a lot of people who don't have that much experience, but माशाल्लाह से they are doing very much well, क्योंकि वो उस चीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं। बिकॉज what I see is, if अगर एक प्लेटफॉर्म पे एक एक्सपीरियंस डाला हुआ है, अगर एक प्लेटफॉर्म पे कोई स्पेसिफिक ऑप्शन है रिगार्डिंग टू कि अगर वो मैं ये कह लूं कि अगर रिगार्डिंग टू कि वो यार आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, या अगर आपका कवर है, या अगर आपका अबाउट सेक्शन है, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर अ पर्पस, ठीक है। हम्म, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अब मैं काफी चीजें देख रहा हूँ, लोग जो है वो अपने पर्सनलाइज कवर्स बनाते हैं दैट रिप्रेजेंट यू, एंड हर चीज में हुक बनाते हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपका लिंक्डइन का फर्स्ट अबव द फोल्ड जो है, वो अगर आप पूरा सही तरीके से उसको डिजाइन करें या सही तरीके से उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालें, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि आपका फर्स्ट हुक स्टेप अच्छा होता है, ताकि आपकी प्रोफाइल पे एक्सपीरियंस अच्छा एग्जैक्टली, है। यस। कोई भी अगर कोई प्रोफाइल में आता है, ठीक है। नाउ दैट कम्स टू द पॉइंट, पर्सनल ब्रांडिंग इज वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, एंड द सेकंड थिंग you just mentioned headlines. A lot या of people don't understand the importance of it, because what I personally believe is no one is going to open your profile, and until they are not opening your profile, the main thing जो उनके सर्च में अगर आप सर्च करते हैं तो आता है, वो शायद दो ही तीन चीजें होती हैं। वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, आपका नाम होता है, और आपका जो है हेडलाइन होता है, जो कि एक या या दो लाइन का या तीन लाइन का हेडलाइन होता है। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट कि उसके अंदर अपने कीवर्ड्स यूज नहीं करते, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी कभी प्रोफाइल शो ही नहीं होती। हम्म, तो जो मेरे पॉइंटर्स हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से बेहतर हो सकती है। नंबर टू, हम्म, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइन, ठीक है, या what it does make, and also the most important thing that I personally believe is the about section, because I think in every interview, in every interaction to a human being, the first हम्म, question that is being asked is, tell me about yourself, ठीक है। या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ की, अबाउट सेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर मैं सितारा से पूछूं, और इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। I am an advocate for personal branding, to be very honest. You know, इस सवाल का आई कैन लाइक आंसर, आई यूज टू थिंक अबाउट इट अलॉट एक्चुअली, जब भी मैं लिंक्डइन में प्रोफाइल्स देख रही होती हूँ। मुझे ना ये चीज़ से बड़ा मसला है ना, मेरा एक बहुत बड़ा ना ये इश्यू है, ऑल्दो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। मुझे ना उन लोगों से शिकायत है जो कि अपने लिंक्डइन को बेसिकली अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बना देते हैं। मतलब आई रिस्पेक्ट दैट योर एम्प्लॉयर एंड योर कंपनी इज अमेजिंग। वो आपको बोनस देते हैं, आपको प्रमोशन देते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपको एनुअल लीव्स देते हैं, अमेजिंग, एंड इट्स सो गुड टू सी दैट योर कंपनी इज टचिंग सर्टेन हाइट्स। बट वेयर आर यू? अपने पर्सनल ब्रांड का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यू ओनली एसोसिएट योर सेल्फ विद योर जॉब। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, गुड फॉर यू, ब्रावो, परफेक्ट, एंड यू शुड शेयर व्हाट योर कंपनी इज डूइंग, एंड यस, बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं, बट उसमें अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी, बट आपकी एक अपनी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी एक पर्सनल ब्रांड है, आपकी अपनी पर्सनल सोच भी है, जिस पर लोग काम ही नहीं करते। आई सी अ प्रोफाइल विद thousands of followers and बहुत हाई लेवल कंटेंट है, लेकिन कंटेंट बेसिकली क्या है, अपनी कंपनी की रीपोस्टिंग कर रहे हैं, कंपनी के पोस्ट रीशेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स भी नहीं डाल रहे, रीपोस्टेड दिस, रीपोस्टेड दिस, रीपोस्टेड दिस, एंड कोई प्रमोशन की पिक्चर आ गई, स्टफ लाइक दैट। They don't understand the concept of personal branding. It is so crucial because basically personal branding defines how you are perceived by the recruiters, how you're perceived by the peers, and when you're doing that, like you're only promoting your company, your organization, then you're working for their branding, you're not actually working for yours. Are you getting my point? Okay, it's about एग्री। presenting yourself as a credible, knowledgeable and approachable expert in the field. अगर आप एचआर प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, आई सी सो मेनी एचआर प्रोफेशनल्स डूइंग वंडरफुल जॉब ऑन लिंक्डइन,
क्योंकि वो सिर्फ अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, वो एचआर के इंटायर फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, बाय शेयरिंग देयर थॉट्स कि व्हाट्स न्यू इन एचआर, how to transform yourself, how to upgrade yourself in HR fraternity, how to become a better HR person, etc., stuff like that. So that is what personal branding is. It's may it builds a trust, it attracts opportunities towards you, it showcases your authenticity, ke how you are professionally mature enough, and how can you engage with others. अब इसमें जो आप अबाउट सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अबाउट सेक्शन को मैं तो मतलब ये कहती हूँ, एआई का दौर है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कंसिडर एआई टू बी सच अ बैड थिंग। मैं अक्सर ही कंफ्लिक्टिंग ना स्टेटस और पोस्ट देख रही होती हूँ लिंक्डइन पे, जिसमें लोग चैट जीपीटी को एक तरफ बहुत अच्छा कह रहे होते हैं और एक तरफ बड़ा ही बुरा भला कह रहे होते हैं कि हाँ ये कमेंट तो चैट जीपीटी का पूरा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये इंट्रोडक्शन तो आपने पूरा चैट जीपीटी का कॉपी पेस्ट कर दिया, सो व्हाट, is there something wrong in it? आपको अबाउट सेक्शन फिल करना नहीं आ रहा, इट्स completely fine, use AI. What you simply need to do is you need to open your chat gpt, you need to give the instructions तो आप ही दे रहे हैं ना, वो तो सिर्फ आपके अल्फाजों को एक प्रोफेशनल टोन दे के बता रहा है. Just tell chat gpt what are you, who are you, what do you do, and ask chat gpt to transform that one sentence into a professional tone, and there you go, you have your about section. उसमें अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने अपने पर्सनल टच के साथ, आप करें, अपलोड करें. हैविंग यूज एआई इज नॉट सच अ बैड थिंग. और अगर वो आपके कंटेंट को इंगेज करने में या और इंटरेस्टिंग साउंड कराने में हेल्प कर रहा है, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, और नो वन शुड बी जज फॉर दैट. ठीक है, हम हर कोई यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ के नहीं निकला हुआ कि हर किसी की इंग्लिश जो है बिल्कुल टॉप नॉच होगी. सो इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप शेमिंग पीपल फॉर यूजिंग चैट जीपीटी. So this is exactly what I would say, your about section is done seriously. Use ChatGPT, take the help of AI. It's going to do wonders for you, trust me. ठीक है, इससे एक और पॉइंटर निकलता भी, आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी, मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग के बाद जो सबसे मेन स्टेप होता है दैट इज कनेक्शन, building connection. There should be a right way of doing that thing, because to be very honest, just putting like just pressing connect to every person in the overall LinkedIn community, it's not how you grow Hmm. your network. मुझे ऐसा लगता है Yes. कि numbers, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि आप Yeah. किस लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं. बिल्डिंग कनेक्शन Hmm. की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑल्सो what are the right way to do it. For example, if I the thing that come up in my mind is when I reach Hmm. out to you. ठीक है, there should be Yeah. a right way to do it, because everyone is going to judge you. Hmm. मैं नहीं मानता, मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता कि कोई आपको जज नहीं करता, या मैं किसी भी कोई अगर कोई लड़की कह रही है, कोई लड़का कह रहा है यार हम तो पहली बार में आपको जज नहीं करते, एवरीवन जज यू. ठीक है, Hmm. 0.01% ही क्यों ना जज करें, बट देर इज अ राइट वे टू डू इट. इफ यू आर Hmm. कनेक्टिंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, एचआर प्रोफेशनल्स, अगर उनको कनेक्ट भी कर रहे हैं तो उसका एक राइट तरीका होना चाहिए. बिल्कुल. हाय हेलो के मैसेजेस से थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में भी हमने लिंक्डइन को बना दिया है. इट्स बिकमिंग अ डेटिंग ऐप, पीपल आर गेटिंग मैरिड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं किसी को ये नहीं कहता कि यार आप ना डालो, इट्स अ कंटेंट प्लेटफॉर्म, आपकी अपनी प्रोफाइल है, वॉट एवर यू आर डूइंग Hmm. विद योर प्रोफाइल, इट्स योर थिंग. Building Yeah. connections, what do you think is the right way to do a building your connections in a certain and subtle way? You need to understand your niche first. ठीक है, अगर मैं मार्केटिंग की बंदी हूँ, ठीक है, अगर मैं मार्केटिंग में काम कर रही हूँ और मैं जाके जो है वो आईटी के लोगों को, या फिर टू अ सर्टेन पॉइंट में भी एचआर को अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें, मैं उनसे कनेक्ट करूँगी जाके, या मैं जो हूँ वो डेटा बेस के लोगों से कनेक्ट करूँगी, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर मी. You need to connect with people related to your own field. When I started my LinkedIn journey, I think properly start my LinkedIn journey, I guess 2.5 or maybe 3 years ago. So at that time, I was looking after CSR marketing of an organization. So I used to connect with people. I would write on the search. Simple है, आप search bar में लिखें. Then again यहाँ पर LinkedIn optimization important है. I'll give the connection there. आपने search box में लिखना है marketing, head of marketing, या फिर marketing executives, या director marketing, whoever you feel like कि आपको उनका connection चाहिए. It will give you a list of individuals related to marketing only, and you send your connections to them. ठीक है, आपके पास एक
कम्युनिटी बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, उसी के बीच में यू कैन ऐड पीपल फ्रॉम HR, यू कैन हैव अदर, जैसे आपने बोला क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है, तो यू नीड टू स्टार्ट विद द पीपल इन योर ओन नीश। अब इसमें लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि if you're writing marketing in your subject, if you're writing marketing in your about section, या फिर आपका मार्केटिंग से ताल्लुक है, तो आपकी टैगलाइन रिलेटेबल होनी चाहिए मार्केटिंग से। फॉर एग्जांपल अब मैं CSR या फंड रेजर में हूँ, तो आई हैव एडेड ऑन माई प्रोफाइल, so if anybody is looking for a fundraiser expert or CSR expert, so my profile will come like that. ठीक है, and I have gotten opportunities through LinkedIn to join various organizations and look after their CSR because it shows clearly on my platform कि yes I'm looking after CSR. तो यहाँ पर आपकी LinkedIn optimization की importance बहुत बढ़ जाती है कि when people want to connect with somebody like you, then you need to show it on your account या on your profile that yes you are the person that they are looking for. So this is how I think networks should be made. You get cross of everything, आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं, but you should be focusing on who's important for you, कि आपका काम किससे निकल रहा है। आई गेटिंग माई पॉइंट कि आप 24,000 कनेक्शन भर लें, 1 लाख कनेक्शन भर लें, लेकिन अगर वो यूजफुल नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। और परफेक्ट। जहां तक आपने बात करी अप्रोच करने की, मैसेज करने की, तो I think that is a debate for an hour long only कि how unprofessional people become on LinkedIn. I swear I tell you कि वो जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो तो मैं मतलब I can't even start to tell you कि what kind of messages I have personally received on my LinkedIn. कि प्रोफेशनलिज्म तो कहीं दूर दूर तक जो है ना वो उनके दिमाग में ही नहीं होती। एंड ठीक है। आई It's something I think every platform has pros and cons, and to be very एग्जैक्टली। honest, it's not the problem of a platform, it's like और ऐसा नहीं, internally आई हैव रिसीव्ड वेरी प्रोफेशनल मैसेजेस, जैसे अब कोई लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए होते हैं, उनका कोई वेंचर होता है, या जैसे कि क्या नाम कोई HR फॉर्मूला नहीं, उनको क्या कहते हैं जो HR सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे या फिर कोई अटेंडेंस सॉफ्टवेयर होता है जैसे HRM है या फ्लो है एटसेट्रा स्टफ लाइक दैट। तो अगर इस तरह के कोई सेल्स पर्सन होते हैं या सेल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आल्सो कनेक्ट विद मी एंड दे सेंड मी वेरी प्रोफेशनल मैसेजेस okay, this I'm working for this, if you're available let's meet, set up a time for a virtual meeting or I can come see you. This is something अच्छा मुझे भी credible लगेगा कि हाँ यार the बंदा या बंदी is legit, कि ये जो बात कर रही है they know कि what they're talking about, so these kind of messages are fine, but sending hi, how's the day going, what's up, here's my number, let's connect on WhatsApp. Why? Why would I connect? I don't even know you. I literally, there person. were some people who started professionally, talking to me professionally, like, what are you doing? Where are you working? And what's your role? And, they started talking to me normally in a professional way, but then suddenly they asked for my WhatsApp number. And then I'm like, is this something particular you would like to discuss with me through my personal number or my official number that you cannot discuss on LinkedIn? No, I just thought that it's good for us to, stay connected. You are already connected to me. So no, there's a very proper way to have a conversation with somebody on LinkedIn, and I think people really need to understand this, that this is not the right way. परफेक्ट। थोड़ा सा ड्राइव करते हैं कम्युनिकेशन को, इससे निकाल के बाहर लेकर आते हैं एजुकेशन की तरफ। व्हाट क्योंकि जो टॉपिक हमारा है वो तो ऐसा टॉपिक है, उस पर तो घंटों बात की जा सकती है। अब उसको थोड़ा सा ड्राइव Exactly. करवाते हैं इस चीज पे कि व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ दैट पीपल आर नॉट टेकिंग रिस्क, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जहां पर है वो सही है। अगर कोई अच्छी पोजीशन आएगी तब देखेंगे। दे आर नॉट हेल्पिंग देयर सेल्फ टू अचीव समथिंग, या कर भी रहे या नहीं कर Hmm. रहे, वो वाइस वर्सा होता ही है। कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू मेक योर ओवरऑल इंटायर ब्रांडिंग या पर्सनालिटी ऐसी बनाते हैं कि पीपल रीच आउट टू यू, एंड देयर इज अ टाइम जब Hmm. आपको लोगों को रीच आउट करना होता है। बट इस पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा भी जो एक पॉइंट मैंने अभी अभी मैं आपकी कॉन्वर्जेशन से निकाला कि यू हैव डन फार्मास्यूटिकल डिग्री Hmm. एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल। ठीक है। इससे मुझे दो तीन चीजें पूछनी है कि क्या जरूरी है कि जो आप डिग्री पढ़ते हैं उसी में अपना कैरियर परस्यू करें, नंबर वन। नंबर सेकंड, व्हाट Hmm. डू यू थिंक यार, मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर काउंसलिंग का बड़ा इशू है, क्योंकि लोग कर लेते हैं
एंड नाउ देन दे रियलाइज इट। अब मैटर द फैक्ट कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग, you can have interest in two things, like you can be a painter and you can be a financial officer, you can be a animator and you can be also a anything, ठीक है। लेकिन हुँ। कैरियर पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब फार्मास्यूटिकल पढ़ा एंड देन यू वो पढ़ा तो क्यों पढ़ा, ठीक है, और जो आप कर रहे हो वो कैसे शिफ्ट हुआ, एंड व्हाट दिस शिफ्ट, लाइक क्या क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस था। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है फार्मास्यूटिकल में तो कहीं पे भी बिल्कुल ये तो बिल्कुल जरूर नहीं सिखाता हूँ ये पॉडकास्ट कैसे करनी है, इट्स रिलेटेड टू मेडिसिन एंड ऑल। नहीं, नहीं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो सवाल है, एंड इस पे भी आई गेस आई कैन टॉक फॉर आवर्स, बट आई विल ट्राई टू कंसाइज़ और समराइज़ एज़ मच एज़ आई पॉसिबली कैन। जैसे कि आपने करियर काउंसलिंग की बात करी ना, यू आर वेरी राइट, एंड मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमेशा से रहा है, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मल्टीपल स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस जो कि करियर काउंसलिंग पे बहुत मैसिवली काम कर रहे हैं। बट यू नो वो परसेप्शन माइंड में आपके ना निकलती नहीं, क्योंकि हमारे फाउंडेशंस बड़े वीक हैं। अब मे बी इन माय जनरेशन वी आर आई थिंक मिलेनियल्स, तो हमें फिर भी जो है ना वो ठोकरें खा खा के अंदाजा हो गया कि हम अपने बच्चों पर जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं थोपेंगे कि तुमने तो बेटा डॉक्टर ही बनना है, या ठीक बेटा है। तुम तो लड़के हो तो तुम इंजीनियर ही बनोगे और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक तो है। आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोज पीपल इन फ्रॉम माय जनरेशन जिन पर यही था कि यू नो यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर एंड यू हैव टू हैव अ वेरी नाइस डिग्री, और तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लगेगा। तो इनिशियली व्हाई शुड आई लाई, आई नेवर वांटेड टू डू फार्मेसी, मुझे हमेशा से बीडीएस का शौक था, बट वो बस एंट्रेंस टेस्ट में नहीं हो सका, तो आई स्विच टू फार्मेसी एंड आई एंजॉयड स्टडीइंग इट, ऐसा नहीं है, मुझे मजा आया। और हमारी फार्मेसी की फील्ड बहुत वास्ट है, लाइक हमारे माइंड में ये परसेप्शन आता है कि हम काउंटर के पीछे खड़े होकर दवाइयां बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वी हैव मार्केटिंग, वी हैव क्या कहना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट भी है हमारे पास, हम हर फील्ड में, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट वी आर वाइडली स्प्रेड आउट एवरीवेयर। लेकिन in my case, if I'm talking about myself, then there were some personal family things that I did not work in my particular field, when I was always very interested in pharmaceutical marketing, मुझे बहुत शौक था। और लेकिन हमेशा से ना माइंड में एक ये चीज़ भी थी कि अपना कुछ करना है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि उस टाइम पे करियर काउंसलर्स नहीं थे हमारे पास, पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कज़िन्स इस तरह के नहीं थे जो कि यू नो सपोर्ट कर सकें आपके डिसीजन को, या सिबलिंग्स में कोई ऐसा नहीं था जो कि यू नो इस चीज़ को सपोर्ट, सबके माइंड में यही था नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर का नाम लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें किसी ने बताई नहीं कि यू नो ये भी हो सकता है। तो मच लेटर इन लाइफ ये रियलाइज हुआ कि मे बी द पाथ दैट आई एम फॉलोइंग इज नॉट फॉर मी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम, ठीक है। तो मेरा तो मकसद बस यही था कि देन 2 साल आई थिंक गुजर चुके थे आफ्टर डूइंग माय फार्मेसी, सो देन दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट माय करियर, बिकॉज़ अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट करती तो इट वुड हैव टेकन मी अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो, आई वुड हैव बीन अ इंटर्न फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूटिव एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। So because I had this thing in my mind to do something of my own, so that's when I started my professional career. I also did teaching for some time. I really like teaching actually, मुझे बहुत पसंद है. So I did teaching for some time, then I got into trainings and I got into hosting, you know, ways बनते गए. And then I joined corporate communication, CSR, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली रेजोनेटेड विद। मुझे सीएसआर में फंड रेजिंग में मज़ा आया, उसमें मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलता था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलता था, यू प्रेजेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और पब्लिक स्पीकिंग का शौक हमेशा से था। बट येस आई वुड सजेस्ट, या इस बात को अगर मैं इस तरह से कहूँ कि हमारे यहाँ गाइडेंस की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है गाइडेंस की। बच्चों को बस ये लगता है कि हम किसी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ की पढ़ाई कर लेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी सेट है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूँ कि the guy that I have on my team who is an editor, he's actually doing his ACCA, but he's a amazing editor. उसको बहुत शौक है फिल्म मेकिंग का, फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, एंड आई टेल हिम कि व्हाई आर यू डूइंग ACCA? तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक, मतलब तुम्हारा जो एक पर्सनालिटी है वो एक फिल्म क्या कहना चाहिए, वो फिल्म मेकर की पर्सनालिटी है, तुम्हारी डिजिटल साइड की पर्सनालिटी है, तो तुम क्यों कर रहे हो? देन हिज आंसर वाज लाइक कि वो माय पेरेंट्स वांट मी टू डू इट, एंड ही वाज आस्किंग मी द अदर डे कि मैं अपने लिंक्डइन में बना रहा हूँ मैम, आप मुझे बताएं कि मैं लिंक्डइन पे क्या डालूं, मैं अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन डालूं
मैं अकाउंटेंसी पढ़ रहा हूँ या मैं अपनी फिल्म मेकिंग की डालूं, एंड इवन एट दैट टाइम आई गॉट कंफ्यूज कि मैं उसको क्या बोलूं, Problem completely is two problem. different fields. So basically, problem is from the base. Like Exactly. you are like our parents are from different thought process. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है। बस वो ये है, वो जाकिर खान कहता है कि वो आपको गलत नहीं देखना चाहते, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते, शायद उनका वो थॉट प्रोसेस है। बट ठीक है, मतलब रिस्क लेने में कोई मसला नहीं है अगर वो एक कैलकुलेटेड रिस्क हो, ठीक है। बट नाउ देन दैट कम। फरहान ने उसमें बोला था ना थ्री इडियट्स में कि मैं कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश रहूंगा, तो हाँ हम लेकिन इस इग्नोर भी तो हाँ कर लेकिन देते हैं। पॉइंट पॉइंट वही है ना कि हमारे यहाँ तो ये पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर बंदा ही कम कमा रहा है, तो हर बंदा अगर फरहान है तो फिर तो नहीं होगा। अच्छा, ये एक और चीज से ड्राइव होता है कि स्टूडेंट्स यूजली थिंक कि यार हम 4 साल की डिग्री के बाद ही ना कुछ करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा सोचते हैं, और जो ऐसा सोचते हैं मैं उनको थोड़ा सा ये कहता हूँ कि यार दिस इज नॉट हाउ प्रोफेशनल कैरियर वर्क्स। जितना पहले आप शुरू करते हैं उतना आपके लिए बेहतर होता है उस ग्रोथ प्लान को, क्योंकि वो बेसिकली शायद उस वक्त तो शो नहीं करता। नॉट नॉट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता होगा कि फार्मास्यूटिकल में भी इंटर्नशिप्स और हर चीज में जैसे होती है। अब कुछ लोग हम्म। होते हैं कहते हैं यार हम 4 साल बाद निकलेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि यूनिलीवर, पीएनजी, रैकेट बैंक, बड़ी सी बड़ी कंपनीज हमारा इंतजार कर रही हैं और वो आके बोलेंगे कि यार हम आपको हायर करना चाहते हैं, और फिर उनके सुनहरे ख्वाब टूट जाते हैं निकलने का, तब उनको पता चलता है कि ओ शिट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट योर सजेशन टू स्टूडेंट्स हु आर करंटली enrolled इन यूनिवर्सिटीज, जिनका थर्ड हम्म। सेमेस्टर, जिनका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर चल रहा है, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली सी इज, अब लोगों को ना, अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि जो आपकी सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं वो आपके समर्स उठाने के लिए नहीं होती हैं, वो आपकी जल्दी डिग्री करने के लिए नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे मेरे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जिनकी नॉर्मल सी जीपीए शायद 2.6 2.7 है, एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो बड़ी बड़ी कंपनीज में ब्रांड मैनेजर्स मार्केटियर्स हैं। एंड आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल who don't have like who have like very good CGPAs 4.0, 3.9, 3.8, and they're still struggling to get a job to anywhere. तो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने पाथवे को रखना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो है, जिस जब आप एडमिशन ले लेते हो दिस इज व्हाट यू आर, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डोंट हैव द कैपेबिलिटी कि यार वो ये इतना इतना सोच के स्टेप उठा सके कि हम अपनी डिग्री चेंज करना चाहते हैं, हम अपना मेजर्स चेंज करना चाहते हैं। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि यार पहले से स्टार्ट करने का फायदा होता है? क्योंकि या ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू हैव स्टार्टेड थिंग्स वेरी मच अर्ली, ठीक है। यू हम्म। नो कि यार इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, देन यू मूव टूवर्ड्स कंटेंट राइटिंग। फिर कुछ टाइम बाद आपने कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बनी, फिर आपने जैसे बताया आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार मुझे स्पीकिंग का शौक है, मैं लोगों से कम्युनिकेशन करने का शौक है, देन दिस इज द होल स्टोरी। तो व्हाट यू थिंक यार, स्टूडेंट्स को क्या चीज करनी चाहिए? लिंक्डइन पहले बना लेना चाहिए, कम्युनिकेशन पहले करना शुरू कर देनी चाहिए, इवेंट्स में जाना चाहिए? व्हाट्स योर आइडिया ऑन इट? I think I'll say yes to whatever you have said. It's exactly what everybody should do. And then again यहाँ पर वही बात आती है, फाउंडेशन इज वीक। हमारी यूनिवर्सिटीज हमें तो ये बताती नहीं है कि ये करना इम्पोर्टेंट है। हमारी तो मतलब यूनिवर्सिटीज अभी भी जो मतलब है। यूनिवर्सिटीज, मुझे तो ये लगता है कि यूनिवर्सिटीज, तो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज जो कि आई थिंक, मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल या जो हेल्थ डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या टर्म यूज होती है, डॉ हो गया, इस तरीके की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रिलेटेड टू मेडिकल या मेडिसिन हैं, तो डू यू हैव दोस जॉब फेयर्स एज वेल? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका के। एंड डू यू थिंक नहीं वो नहीं, जॉब बिल्कुल फेयर बिल्कुल। एंड डू यू थिंक वो जॉब फेयर का कुछ होता है? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल हमारी फील्ड में होता तो है। कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, होता है एक्चुअली। देखिए, नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एट एनी पॉइंट इन लाइफ। नेटवर्किंग अगर आपकी है, मैंने अपने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है जो कि फोर्थ ईयर में आके जॉब्स कर रहे थे। दे स्टार्टेड विद इंटर्नशिप, दे बिल्ड अप देयर रेपो इन द कंपनी एंड द कंपनीज ऑफर्ड देम पोजीशंस व्हाइल दे वर स्टूडेंट्स। और आई यूज टू सी देम कि वो रोज रोज सुबह वो किट शिट में आते थे, प्रॉपरली क्लासेस लेते थे और निकल जाते थे हाफ डे जॉब पे अपनी। ठीक है।
सो जॉब फेयर्स में हम थोड़े से ज़रा डिफरेंट माइंडसेट वाले थे, हम ज़रा वो नो वो जो फन वाला ग्रुप होता है उसमें होते थे, तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे। बट आई हैव सीन मल्टीपल ऑफ माई फ्रेंड्स, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ अलोन। तो मैं मुझे कभी मौका ऐसा मिला नहीं था मार्केटिंग में वो करने का, मुझे शौक बहुत था। बट आई डिड इंटर्नशिप्स इन अ हॉस्पिटल ना। तो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी भी एक फील्ड होती है ऑब्वियसली। तो मैंने अपने हमारे यूनिवर्सिटी के साथ ही एक रिहैब सेंटर था, तो वहाँ पे मैंने वो इंटर्नशिप करी थी। एंड देन वो इंटर्नशिप करके मुझे रियलाइज हुआ आई एम नॉट मेड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, आई विल नेवर डू इट। ठीक है, तो आपकी अपनी फील्ड में आपकी कितना इंटरेस्ट है, या आपको वो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस जब मिलता है ना, तो इट ओपन अप योर आईज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कि अच्छा। एंड आई थिंक अगर आप, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपने आई थिंक सेकेंड ईयर में करी थी, तो इट ओपन माई आईज कि नहीं, हॉस्पिटल फार्मेसी इज समथिंग आई कैन नॉट डू, देन मे बी आई ट्राई समथिंग एल्स। एंड दिस इज अ लॉट ऑफ व्हाट माई फ्रेंड्स एज वेल डिड, उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में करी जॉब्स, इंटर्नशिप्स करी, 3 महीने की रेगुलेटरी में कर ली, 3 महीने की मार्केटिंग में कर ली, हर साल उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। एंड देन फाइनली दे सेटल्ड अप कि अब फाइनल ईयर से हम पास होके मुझे तो इसी जगह जाना है, या दिस इज द फील्ड दैट रेजोनेट्स विद मी। तो आई थिंक इंटर्नशिप हो गई, या नेटवर्किंग हो गई, या इवेंट में शो अप करना, इवन इफ यू डूइंग इट एज अ वॉलंटियर, गो अहेड, बी प्रेजेंट, हसल करें। इट इज जस्ट फॉर योर ओन बेटरमेंट एंड टू गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। क्योंकि आपको बताने वाला ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं है। हम भी अपने सीनियर्स पे डिपेंडेंट होते थे, हमारे सीनियर्स अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे थे जो हमें हेल्प करते थे। बट अभी भी हम अपने यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंडेंट, मुझे नहीं पता अब हो सकता है मे बी अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दी हो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने, लेकिन हमारे टाइम में इतनी नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ कि हमें जो पढ़ाया जाता था बहुत इंपॉर्टेंट था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन बहुत से लोग या बहुत से दोस्त मेरे इस तरह के हैं जो कहते हैं कि यार हमने जब फील्ड जॉब करी जाके, जब हमने जॉब स्टार्ट करी तभी हमें अंदाजा हुआ कि हमें क्या क्या नहीं आता, कि काश हमें यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा दिया होता, काश हमें यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा दिया, हमारी तो सारी टेक्निकल नॉलेज जो है वो जॉब पर बनी है। सो यू गेटिंग माई पॉइंट कि हम मतलब एग्री। वी ये रियली मतलब डोंट इट्स अंडरस्टैंड। इट्स मोर लाइक हसल, लाइक आपको हसल करते रहनी चाहिए। जितना पहले आप कर लेंगे वो आपको आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद देती है। ठीक है, एग्जैक्टली। दैट कम्स टू अनदर थिंग कि यार जब आप ये सब चीजें कर लेते हैं ना, और फिर बात आती है कि पोर्टफोलियो की भी। हम्म। क्योंकि सिर्फ लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कर लेने से और हर चीज कर लेने में मतलब इट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हर चीज साथ साथ रहनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लिंक्डइन पे कवर बना लेते हैं और लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं, बट जब बात आती है उनके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की तो वो उस पर कोई काम नहीं करते। सितारा, कैन यू हेयर मी? यू वर स्टक, सो I'll repeat my question, so I I'll cut it can off. hear you, I can't see. I can hear you, I just can't see, now I can see you. Okay, so what I'll do is I'll reframe my question again, ठीक है, ताकि हम वो पार्ट काट लेंगे, ठीक है। Okay, तो ठीक है। you were So I have another thing that to discuss is कि हर चीज तो सही है, लिंक्डइन भी सेट कर ली, कनेक्शन भी भेज दिए, और सब कुछ सही है। अब बात आ जाती है पोर्टफोलियो पे, क्योंकि ऑल्सो योर वर्क्स मैटर अलॉट। जो भी आप लिंक्डइन पर पोस्ट करेंगे वो भी आपका पोर्टफोलियो होगा, बट यू शुड हैव अ राइट वे टू लाइक शोकेस योर पोर्टफोलियो। इफ यू हैव अ वेबसाइट इट्स गुड, इफ यू डोंट हैव अ वेबसाइट बी एट द राइट प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो गूगल ड्राइव में अपना सारा काम डाल देते हैं और गूगल ड्राइव का लिंक देके बोलते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। नो वन हैज अ टाइम टू यार कि वो आपके फोल्डर्स में जाएगा और वो आपकी चीजों को देखेगा। देयर शुड बी अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग इट। वेबसाइट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल वे। उसके बाद अगर नहीं होता तो यू हैव प्लेटफॉर्म लाइक Behance, ड्रिबल, विमियो, रिलेटेड टू क्या, अगर आपका विजुअल डिजाइन का है, विजुअल कुछ है, हम्म। स्टिल्स का है तो Behance पे डाल दो, अगर मोशन डिजाइन या एनिमेशन या प्रोडक्शन या वीडियो रिलेटेड है तो Vimeo पे डाल दो या यूट्यूब पे डाल दो। मतलब प्लेटफॉर्म को सही से यूज किया जाए, जो प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए बना है। सो जब आप सारी चीजें कर लेते हैं, लिंक्डइन विंक्डइन सेट हो जाती है, तो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे टू डू इट एज पर सिताराज माइंडसेट? First of all, I think I would differ my points here a little bit from you, that I think LinkedIn is just a platform, is not just a platform, it is literally your portfolio. ठीक है।
लिंक्डइन को अगर आपने अपने ऑप्टिमाइज कर लिया ना, और अगर आपने लिंक्डइन को अपने बेहतरीन कर लिया, तो आई थिंक लिंक्डइन से बेहतरीन आपका पोर्टफोलियो ना कोई और हो नहीं सकता। उसके फीचर्ड सेक्शन का आप जितना फ़ायदा उठा लें, आपके लिए बेस्ट है। फीचर्ड सेक्शन में आप हर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसमें यू थिंक यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ रिक्रूटर टू सी और फॉर अ क्लाइंट टू सी। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस। अभी कुछ टाइम पहले तक मेरा पोर्टफोलियो जो था वो था, लेकिन अपडेटेड नहीं था। तो आई वॉज स्टिल लुकिंग फॉर अ डिजाइनर यू नो टू बी ऑन माई टीम हु कैन हेल्प मी आउट विद दीज थिंग्स. So at that time, I got a few opportunities of hosting, you know, for emceeing a certain events. So the very first thing that any client would ask me was to send me the portfolio. ठीक है, अब because at that time my portfolio wasn't updated, so what I would simply do was I would share my LinkedIn URL with them, and I would tell them everything you need to know about me, my work is there. Because you know when you're being considered for being the MOC of a program, they want to see how you talk. दे वांट टू नो कि आप किस तरह बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से इवेंट स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. सो दे वांट टू नो ऑल दैट. तो आई सेड दिस इज माय लिंक. इसमें आपको मैं बोलते हुए, बैठते हुए, चलते हुए हर तरीके से दिख जाऊंगी, सो यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू इट. तो लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस को तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते. रही बात आपके, देन अगेन कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं या एडिटर्स होते हैं जिनके इस तरह के एनिमेशन के काम होते हैं, तो उनके लिए तो मतलब आई डोंट थिंक इस चीज़ को लाइट लेना बिल्कुल भी अफोर्डेबल है कि आइदर दे शुड हैव अ पोर्टफोलियो और नॉट. बिकॉज इवन इफ आई कंसिडर माई एग्जाम्पल, तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड माई डिज़ाइनर वाज टू शेयर मी हिज पोर्टफोलियो. तो मैंने कहा भाई आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, आई वांट टू सी योर वर्क फर्स्ट. So this is something that is extremely important because it builds your credibility, you know. पोर्टफोलियो आपके प्रोफाइल को कंपेलिंग बनाता है, आपको competitive, बिकॉज इट्स अ वेरी competitive फील्ड. आप अभी मैं फाइवर पे या जो है freelancer.com पे लिख दूँ किसी VFX एनिमेटर ब्ला 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 whatever I need, I will get thousands of proposals. So being in such a competitive field, you need to understand the importance of building your credibility through your portfolio. It helps expand your network. आपके project lead collaborations और recommendation मिलने में, you know, it gets so easier for you. और लिंक्डइन पर पोर्टफोलियो बनाना सो इजी. लाइक आई सेड, फीचर सेक्शन में आप अपने बेस्ट वर्क को हाईलाइट करें. किसी ब्रांड का कोई आपने काम किया, आप उसको हाईलाइट में रखें, बिकॉज फीचर सेक्शन वो सबसे पहले आता है. अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई भी जाता है तो फीचर सेक्शन कम्स वेरी फर्स्ट. और उसमें बंदा 2 मिनट के अंदर अंदाजा लगा सकता है, कोई भी जो है वो क्लाइंट जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, वो आपके काम को 2 मिनट में अंदाजा लगा सकता है कि हाँ यार दिस इज द गाय दैट आई एम आफ्टर. So बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं. हम्म. what I have learned from you is to managing is important. It's या. to have it in a right way, related to the field to एग्जैक्टली. field, but it's very much important, and that was my It is main important. idea. To perfect. Yeah. Now, the last thing that I need to discuss with you is Mm. what was your strategy when you started your LinkedIn and how it changed आज से 5 साल, लाइक आज से 2 साल पहले जब आपने LinkedIn स्टार्ट करा था और अब नॉर्मल स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे का अपनी स्ट्रैटेजी होती है. देयर इज नो सच थिंग कि यार मैंने इस दिन पोस्ट करना है या मैं स्केड्यूल करूं. कुछ लोग कहते हैं स्केड्यूल करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्केड्यूल करना नहीं चाहिए. रीच का मसला होता है. बट व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? लाइक do you want to do, like you learn from your own mistakes, or do you review different profiles that what they are doing so you can enhance it as well? सो अगर मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सेटल डाउन करूँ तो ये सितारा की लिंक्डइन स्ट्रैटेजी क्या है? सितारा की लिंक्डइन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं, राइट? कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. व्हेन यू आर इनिशियली स्टार्टिंग योर लिंक्डइन, तो कनेक्टिंग विद द राइट पीपल शुड बी योर टारगेट, यस बिल्कुल. बट you also need to have, you know, a certain level of numbers to your portfolio. Yes, or basically your LinkedIn, your profile. तो कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फ्रेटर्निटीज इज नॉट गोना हर्ट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो लिंक्डइन स्ट्रैटेजी, अगर मैं आज से 2 ढाई साल पहले की बात करूँ, तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम मार्केटिंग एंड HR मेजरली. ठीक है. उसके बाद व्हेन आई रीच टू अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स, तो उसके बाद आई यूज्ड टू गेट पीपल फ्रॉम IT, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स. तो आई यूज्ड टू कनेक्ट विद देम एज वेल. जब मैं उनसे कनेक्ट होना स्टार्ट होती थी, तो मेरे पास डिफरेंट रिकमेंडेशंस भी आते रहते थे.
मेरे प्रोफाइल पे जो है वो डिफरेंट लोग आते रहते थे जिनका मेरी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता था, बट बिकॉज आई यूज टू लाइक द कंटेंट दैट दे आर पोस्टिंग, आई वुड कनेक्ट विद देम. सो दिस इज हाउ आई बिल्ड अप माई कनेक्शंस. अब रही बात पोस्ट करने की, तो देर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे टू डू इट. ठीक है. रॉन्ग वे ये होगा कि आप बिल्कुल इरेलीवेंट चीजें डाल रहे हैं, या आप किसी के पोस्ट पर सिर्फ CFBR लिख रहे हैं, या गुड इंसाइट लिख रहे हैं, इंडीड लिख रहे हैं. You should know how to interact and how to present yourself out there, because a lot of people are seeing your comment section, you know, a lot of people are seeing what you're writing. पोस्टिंग की जहाँ तक बात है, आई थिंक मैं कुछ टाइम पहले आई स्टार्टेड फॉलोइंग तलहा भट्टी ऑन लिंक्डइन, हमजा भट्टीज ब्रदर, इफ यू नो. तो उनका मुझे एक पोस्ट बड़ा अच्छा लगा था कि व्हेन यू इनिशियली स्टार्टिंग आउट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, देन फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. फिर अगर आपको हफ्ते में 7 पोस्ट भी करनी पड़े ना, दिन में 2 दफा भी करनी पड़े, तो करें. बिकॉज यू नो एल्गोरिदम को थोड़ा सा चीट करना पड़ता है कभी कभी ना आपको. And then once your audience build up, once your impressions start to build up, and then you know start filtering out. अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आपकी क्वालिटी कम होती चली जा रही है, कि आप फालतू का जो समझ में आ रहा है वो भरे चले जा रहे हैं. नो, पोस्ट द रेलेवेंट स्टफ, लेकिन post a lot initially, and then once you know build up that credibility, once you build up those connections, then you post them like 3 days a week maybe, or 2 days a week. That's completely up to you. And there's a friend of mine, a very amazing trainer. Unki strategy hai, if I don't know, she wouldn't mind me sharing here, and that's actually what I also try to follow. That she has selected days कि मंडे को जो है मैंने एक लॉन्ग पोस्ट शेयर करनी है, समथिंग रिलेटेड टू यू नो माइंडफुलनेस, बिकॉज शी वर्क्स अ लॉट ऑफ यू नो माइंडफुलनेस टेक्निक्स एंड साइकोलॉजी एंड स्टफ. माइंडफुलनेस से मुझे पोस्ट शेयर करनी है. फिर मिड ऑफ द वीक जो है मैं कोई वीडियो बना के डालूंगी, वीडियो कंटेंट डालूंगी अपना किसी भी टॉपिक के ऊपर. एंड देन फ्राइडे को जो है मैं ग्रेटिट्यूड पोस्ट डालूंगी. सो नो यू नो यू डिवाइड सर्टेन डेज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट यू वांट टू प्रेजेंट आउट देयर इन द वर्ल्ड. उसमें बीच में आपने कंपनी के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, फाइन कर लें, कोई मसला नहीं है, बट यू नो टू वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, यू नीड टू हैव अ सर्टेन स्केड्यूल कि हाँ मंडे को अगर मैंने ये चीज़ शेयर कर दी है तो मैं वेडनेसडे को अपना वीडियो कंटेंट डालूं. बिकॉज आई बिलीव लोग वीडियो कंटेंट की इंपॉर्टेंस नहीं समझते. वीडियो कंटेंट जिसमें आप बात कर रहे हैं अपने फेस के साथ और अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू get viral, you can call it, or it is going to get much more attention than your written posts. And I've seen it firsthand. So you need to you know have that confidence maybe, or you need to be strong enough to understand that your face and your words are very important to understand, and you know sorry to you know portray yourself and you build your personal brand out there. So this is basically what Sitara also does. I do write my own thoughts, I share the pictures as well, I share इवेंट फोटोज एज वेल कि मैं किस इवेंट में गई थी, द इवेंट इज रियली यू नो मीनिंगफुल टू मी, तो आई शेयर दैट एज वेल. समटाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा था उस इवेंट में, एंड आई हु आई मेट, क्योंकि व्हेन आई टैग द पीपल दैट आई मेट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन या इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जिन लोगों को मैंने टैग करा ना, उन लोगों के कनेक्शन तक भी मेरी पोस्ट पहुंची जो मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं थे, तो दे ऑल्सो आई गॉट एक्सपोजर टू देम एज वेल. सो यू सी हाउ दैट कनेक्शन वर्क्स, हाउ दैट नेटवर्क बिल्ड्स अप. अब वो लोग भी मुझसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज द वेब दैट इट वर्क्स दिस वे, एंड आई बिलीव दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, टू बिल्ड योर Perfect. सेल्फ ऑन. Perfect. Thank you so much, Sitara. Thank you so much for a wonderful session. I'm pretty much sure that a lot of people can have a lot of good insights from that, and they can work on their LinkedIn as well, and then can grow and help him out to get clients or maybe get a good job. Thank you so much, Sitara. Thank you so much. Take care.